And I think in note I have written, if there is dielectric medium, then C is equal to K epsilon 0 A upon D, right? Yes, sir. Yes, sir. Now here, bacha, you should understand the slab is placed and that is not exactly fitted into the two plates. I will just show you the diagram. So next is capacitance. Capacitance of P dot P dot P, C. What is that? P dot P dot C? Parallel plate capacity, right? Yes. Yes. With the dielectric slab between the plates. Fine. So first we'll consider parallel plate capacitor. So it has got two plates. So this is the first plate with the area A, and it is connected to the higher potential. Then we have got one more plate at some distance. Let the distance between the two plates, it's D. And of course, it is connected to Earth. Right? Yes, right? sir. Yes, sir. So if Yes, it is sir. connected to positive terminal of the cell, so here you will have plus Q charge, and here you will have minus Q charge, and the charge on this is plus, right? So I'll show it like this. This is plus. Fine. This is minus. Is it okay? Yes. Yes. And electric field right now we have got E naught bar, and it is going to be from positive to negative. So this is going to be the applied electric field. Clear up to this much? Yes, sir. Yes, sir. So I've shown only one line, but you should understand there are many lines, right? Yes. Yes, sir. And right now the capacitance, if anybody asks what is the capacitance of this, right? So what you will say, bacha, it is going to be A epsilon 0, Epsilon T. 0 upon D. A epsilon. Yes, sir. right? Yes. Yes. Now in between this, you will place a dielectric slab having thickness T. So it is not entirely filled. So this is going to be the dielectric slab. Fine. Now thickness of this, it's going to be T. Now you know that if this slab is made up of polar or non-polar, irrespective of that, there will be a polarization. And because of this polarization, here you're going to have negative charge. Right, bacha? Yes, sir. Yes, sir. Sir. And the value of this will be, obviously it is going to be minus QP. Minus Q. And here you're going to have positive charge. Plus QP. Exactly, QP. bacha. It is going to be plus QP. And the direction of electric field due to polarization will be exactly reverse. Reverse. Yes. This is going to be EP bar. Is it clear up to this much? Yes, sir. Yes, sir. But any confusion? सर वो ई No, बार sir. नॉट क्यों लिखा क्या बोल रहे हो बच्चा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ई बार के नीचे जीरो क्यों लिखा? जीरो मतलब फ्री स्पेस के लिए करके मैंने जीरो लिखा है. इसका कुछ Yes. ऐसा तुम चाहिए तो ई बार भी लिख सकते हो. ई बार मैं किसके लिए लिखूंगा? नेट के लिए लिखूंगा. यस ठीक है? समझा वो समझा प्लेट के ऊपर जो चार्जेस है और वो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों सेम नहीं रहेगा? नहीं नहीं, वो उतना ही होना है वो जरूरी नहीं. वो रिलेशन है उनका बीच कितना होता है वो डिपेंड करता है. फील्ड अप्लाई कितना, तुमने कितना फील्ड अप्लाई किया, नंबर वन. देन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि थर्मल एजिटेशन है उसके ऊपर भी Yes. डिपेंड रहता है. राइट? यस सर. मतलब ये रिलेशन पक्का है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, बट इक्वली होगा वो जरूरी नहीं. क्लियर? यस सर, समझा. Yes, sir. बच्चे इधर तक सबको समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? No. ठीक है.
नाउ सबको पता है, सपोज से स्लैब नहीं है, देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली हम लोग V नॉट लेंगे। क्या लेंगे बच्चा? V नॉट, V naught. राइट? नॉट V naught. So I would say in free space, in free space मतलब कुछ नहीं है, चलो कैपेसिटेंस तो A एप्सिलॉन 0 D हुआ, और जब हम लोग V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी E नॉट इनटू D होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, राइट? यस Yes. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करूंगा तो क्या बोलेंगे आप बच्चा? दोनों देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, जिसको आप चाहिए तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते, यस सर Yes, Right? sir. Yes. so in dielectric slab या in the presence of dielectric slab, so लो मैंने dielectric slab डाला तो ऑब्वियसली ये भी आ जाएगा, राइट? EP भी आ जाएगा, राइट? Yes. यस so I can write EP जो है, don't you think it is sigma P upon epsilon naught है? बराबर ना Yes. बच्चा? इसका भी यूनिट Yes. एरिया पे जो चार्ज हो सिग्मा P होगा ना? सर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा ना? क्यों आएगा बच्चा? हम लोग ने कंसिडरेशन किया ना पोलराइजेशन का, हम Sir, लोग ये ने वाला E नहीं समझा, ये वाला एक बार नहीं बता बच्चा, समझा सर। ये जो सरफेस है, राइट, उधर चार्ज क्या रहता है? सिग्मा P है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वजह से बाहर क्या रहेगा? एप्सिलॉन 0 आएगा, अंदर का बात नहीं हो रहा है बच्चा। Yes, sir, समझा. बच्चा देखो ये स्लैब है, प्लस 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 प्लस, तो ये पॉइंट तो बाहर है ना, तो बाहर एप्सिलॉन आएगा बाहर कि क्या? एप्सिलॉन नॉट आएगा? एप्सिलॉन नॉट Epsilon 0. तो इसके लिए एप्सिलॉन नॉट है, राइट? यस सर समझा ठीक है, फाइन। अभी आगे बोलो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? चार्ज पे लिख सकता हूं, सो ऑब्वियसली दिस विल बिकम QP अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Epsilon 0. यस इज इट Yes. ओके? यस सर Yes. तो हम लोग को ये भी मिला, ये भी मिला। अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट माइनस ईपी राइट बच्चा? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स स्लैब इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। अभी देखो आपको क्लैरिटी मिला, क्योंकि अभी मैं E लिखने वाला हूं, बिकॉज इट इज E नॉट माइनस EP होगा, बराबर है? Yes. राइट? यस सर एनी Yes, sir. कंफ्यूजन? No, No. sir. No, sir. अभी मेरे को ये बताओ बच्चा, देखो ये फोर्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज है, बराबर है? यस Yes. तो यूनिट चार्ज तो कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली ये जो फोर्स जो है और E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? फोर्स ज्यादा है तो E ज्यादा है। Yes. Yes. हाँ, अभी एकदम सोच के आंसर करना बच्चा। K इज इक्वल टू, डोंट थिंक हम लोग एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, यस Yes. सर Yes, sir. इसको हम लोग FA अपॉन FM भी लिखते हैं। एफएम यस Yes. Yes. इसका मतलब इसको हम लोग EA मतलब E नॉट होगा, अपॉन E लिख सकते हैं। ई नॉट बाई यस सर तो इसका मतलब इसको E नॉट अपॉन E नॉट माइनस EP लिख सकते हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड A है। यस Yes. Yes. सर एक बार फिर इस- से समझाओ ना, मैं नहीं समझा सर. बच्चा फोर्स एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब Yes. जिधर फोर्स है उधर आप चाहिए तो एयर का इक्वेशन, मतलब फोर्स का बदले में E का भी रेशियो लिख सकते हो, राइट? Yes. Yes, sir. अब ये फोर्स इन एयर है तो E नॉट लिखा, फोर्स इन मीडियम क्या है? E है ना, अभी स्लैब रखा तो फील्ड E हुआ है, यस Yes, वो समझा. बट E क्या है? E नॉट माइनस EP है, राइट? यस Yes. अभी इतना ही देखो बच्चा, K इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E नॉट माइनस EP, K इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E नॉट माइनस EP, सो कैन आई राइट E नॉट माइनस EP, E नॉट माइनस EP इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K। देखो, सर साइड का क्लियर. हाँ क्लियर नहीं है? यस सर, क्लियर नहीं दिख. ओके ओके फाइन फाइन, चलो बड़ा लिख ले बच्चा। K जो है इट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, बराबर है?
Yes, yes. जिसको Yes. हम लोग फोर्स इन एयर बिटवीन अपॉन फोर्स इन मीडियम लिख सकते हैं, जिसको Yes. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन मीडियम लिख सकते हैं। Yes, sir, समझा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन एयर ई नॉट है, अपॉन मीडियम ई है, बट हमको Yes, पता है sir. कि इट इज ई नॉट अपॉन ई माइनस ई नॉट है, सर ईपी है। EP, Right. yes, sir. समझा। Yes. अभी बच्चे इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो डोंट यू थिंक यू विल गेट ई नॉट माइनस ईपी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। Okay. यस सर, Yes. Yes, sir. ठीक है अभी Yes. यस तो Yes, लिख, sir. इसका Yes. मतलब मैं लिखूं Yes. Yes, तो sir. इट इज ई नॉट अपॉन के, राइट। Yes. यस एंड ऑफ कोर्स कोई पूछेगा के क्या है, सो वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Dielectric constant. Constant. राइट बच्चा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आई होप इधर तक तो सबको समझ में आया है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. सर, बट हमको पता है ना ई नॉट ए है, तो ई नॉट का वैल्यू डाला तो यू विल गेट ई इज इक्वल टू, ई नॉट का वैल्यू डाला तो यू विल गेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट बच्चा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 के। देखो बच्चा, Yes, sir. यस Yes. अदरवाइज मैं ये भी लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 के इंटू ई, यस Yes. राइट। Yes. Yes. मतलब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिला, राइट। Yes. Yes. Yes, sir. यस तो मतलब इतना तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जो एयर में था वो अभी ई 0 अपॉन के, मतलब 1 अपॉन के टाइम्स हो गया, 1 अपॉन के टाइम्स हो गया, बराबर है। Yes, sir. यस ठीक है, अभी बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गया, अभी पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे, किसका। Potential difference. Potential difference. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय, बच्चा पहला पोटेंशियल डिफरेंस क्या था बच्चा, ये था ई नॉट इंटू डी था, बराबर है। यस Yes. अभी बच्चा ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चा, देखो इसमें ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, बट ये और ये एयर है ना, Yes. Yes. राइट। तो पहला एयर के लिए लिखेंगे दैट इज ई नॉट इनटू एयर में जो डिस्टेंस है वो डी माइनस टी है। अच्छा कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि डिस्टेंस अभी डी माइनस टी होगा एयर का, Yes. Yes, sir. एंड ऑब्वियसली जो आपका स्लैब का जो है वो ई इंटू टी होगा, राइट। यस क्यों बच्चा ई इंटू डी, क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है एंड थिकनेस टी है। Yes. बच्चा एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, एयर का जो विड्थ है वो डी माइनस टी है, स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई एंड उसका थिकनेस टी है। Sir, D minus T नहीं समझा। बच्चा मेरे को ये बताओ ये रीजन में एयर कितना है, डी माइनस टी है ना बच्चा। Yes, sir. समझा। Yes, sir. बच्चा और कुछ पूछो, डाउट है तो, या क्लियर है तो नेक्स्ट स्टेप लिखता हूं मैं। समझा sir. बच्चा Yes, sir. ई समझा। ई कैन आई राइट ई नॉट अपॉन के, यस Yes. so v is equal to e naught d minus t plus e naught upon k। बच्चा ठीक से देखो, इज इट ओके। सब blur है। Blur. sir. ओ एक मिनट बच्चा, अभी हुआ क्या ब्लर, Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी आई थिंक ठीक हो गया। ब्लरी है सर। अभी अभी Yes, sir. अभी ठीक। चलो अभी ठीक है। Yes, sir. बच्चा इज इट ओके फॉर एवरीबडी नाउ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. देख लो बच्चा, ठीक है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मेरे को लॉग आउट करके फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। नाउ आई थिंक इट इज Clear वेरी है। क्लियर। Yes. Yes, sir. Now it is clear. ओके Yes, फाइन sir. फाइन, ठीक है बच्चा। अभी मेरे को आपको भी पता है ई नॉट को कॉमन लेना है, राइट। यस Yes. तो इफ आई डू दैट, ई नॉट बाहर, inside the bracket it is d minus t plus it is t upon k, yes or no। Yes. Yes.
सो नाउ व्हाट इज ई नॉट बच्चा? Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 है, तो आप ऐसा फाइनल इसको Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट इट इज D माइनस T प्लस T अपॉन K लिख सकते हैं, राइट? Yes. Yes. So this is the electric field and this is the potential difference right now. Clear? अभी V पता है तो ऑब्वियसली आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि Q अपॉन V जो है वही तो क्या है बच्चा? कैपेसिटेंस, Capacity. Capacitance. राइट? बच्चा ये जगह आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन? Yes, sir. दिख रहा है. Yes, तो उधर sir. लिखेंगे तो उधर लिखूंगा तो चलेगा? Yes. Yes. Okay, fine. So capacitance is given by हाँ बोलो बच्चा क्या लिखो? क्योंकि C is equal to Q upon V है, आपके पास Q भी है V भी है, just you know it's a matter of rearrangement. A epsilon naught upon Yes, sir. T, Here T minus T Plus plus T upon K. plus K. C is equal to ये A epsilon 0 ऊपर Yes. A epsilon 0 फिर D minus T Minus upon T plus T plus by T K. D minus T Plus T by plus K. T T upon K, K. Okay. right? Yes. So this is going to be the formula for capacitance when you introduce dielectric slab partially, not fully, right? Yes. Yes, sir. बच्चा पक्का समझ में आ रहा है? Yes, सर sir. इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा? सब ब्लर हुआ है. बच्चा ब्लर है? No, sir. No, sir. No, sir. अभी ठीक है, देखो Yes. अच्छा Yes. मेरे को ये बता बच्चे, चलो आगे भी चले जाएंगे, इधर तक समझ में आकर आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे ये जो पूरा स्लैब भरा हुआ है डी तक है, तो डी और टी तो सेम होगा ना? सेम हो जाएगा. Yes. कौन हो जाएगा? मतलब ऐसा लिखूं मैं, इफ टी इज इक्वल टू डी, मतलब फुल्ली स्पेस्ड हो गया ना, तो ये डी माइनस टी गायब हो जाएगा Zero. So, yes. Zero. Yes. एंड ये टी डी हो जाएगा K बच्चा, ऊपर टी डी जाएगा. हो जाएगा और के ऊपर चला जाएगा. डोंट थिंक विल गेट सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी है, देख लो. Yes, sir. Yes, sir. डोंट थिंक, ये तो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको फॉर्मूला. हाँ. Yes, sir. Yes. पक्का है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, कंप्लीट करो. सर जनरली कैपेसिटर में वो फुल्ली फिल्ड रहते हैं कि पार्शियली फिल्ड रहते हैं डाइलेक्ट्रिक से? फुल्ली रहता है बच्चा, बट कभी कभी क्या होता है, स्लैब एक ही नहीं रहता है, बहुत सारा रहता है, राइट? तभी फुल्ली नहीं हो सकता है ना. सर स्लैब रखने के बाद कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ जाता है? ऑफ कोर्स बढ़ जाता है ना बच्चा, के टाइम्स बढ़ गया. देखो इधर कितना है, इधर कितना है, वो कंपेयर करेंगे बाद में. K times yes. के टाइम्स
सर स्क्रीन ब्लर हो गया. But is it blur? I think it is clear. No sir, clear. No, No, sir. sir. Right? Clear है ना बच्चा? Yes. Yes, sir. Okay. What's finished? No. Done sir. Okay. So everybody finished? Yes, Yes. sir.
Yes, sir. Should I rub the board? Yes. 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 Fine. So I'll take it as case number 1 only, a note number 1. So right now we have got a formula that is C is equal to A epsilon naught upon D minus T plus T upon K, right? Yes. Yes. So note number 1. If T is equal to D, you know that a dielectric slab, a dielectric entirely fills the space, right? Yes. 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 Then you can just write C is equal to epsilon 0 K A upon D. So you can just write K times epsilon 0 upon D, means it will become K times C naught, right? Yes, sir. Because the value of C naught, it is epsilon 0 A upon D. So in other words, I can write capacitance in medium is K times capacitance in air, right? Yes. Yes. So now you have got many formulas for K. One is epsilon upon epsilon naught. Another is Fa upon Fm. Another is E naught upon E. Now you have got one more formula, that is Cm upon M Ca. upon CA. Is it okay? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Note number 2. But now you have got a parallel plate capacitor with the area A and the thickness, it's D. Sorry, not thickness, distance between the two plates, it is D, right? Now what I'm going to do, but I'm going to plate N dielectric slab with different thickness. It means it is going to be maybe from first, I'm going to place a gap, then I will fill a dielectric slab with the dielectric constant K1 and thickness T1. Did you get that? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Again gap, then slab with the dielectric constant K2 and this thickness T2. This will go on, and obviously the last one will have Kn, and this thickness will be Tn. Did you get that? Yes, sir. Yes, sir. Means for every slab there is gap. For every slab there is gap. So now tell me, bacha, what is the value of C here? Epsilon 0 A upon. So first you have to find how much air will be there. Then obviously air will be T, D minus D T1 minus plus T2 up to Tn. T1 in bracket, right? Plus T2 Up to Tn. dot plus Tn. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So you are done with that. Then you have to do it for all the slabs. That is T1 upon K1. Right? Yes. Okay. So this will T2 upon K2 plus dot plus T by Tn Tn. upon Tn upon Kn. Kn. Is it okay? Did you get the formula? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now, bacha, if there is no gap, first comes K1, then comes K2, then comes K3, no gap. If there is no gap D minus between T3 हो slabs. जाएगा. हाँ, मतलब एयर का स्पेस ही नहीं होगा ना बच्चा. एक ही Yes. स्लैब पे Yes. मतलब ये T, D minus T1 ये सब मिलके D होगा, D गायब. Yes. Yes, cancel. इसका मतलब तुम्हारा फॉर्मूला होगा epsilon 0 A upon, of T1 course by it is T1 D plus T2 by T2. T1 upon K1 plus
dot 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 plus by k. Tn upon Kn. Is it okay? Yeah. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. फाइन, ये एक केस हो गया. अभी थर्ड केस में बचा हम लोग एरिया चेंज कर लेंगे, राइट? ये भी पॉसिबल है ना? Yes. I mean, you have got a dielectric slab. So, चलो n number of capacitor है with the different plate areas, right? Yes. Yes. So then for different area of dielectric slabs, and of course different area मतलब उसका dielectric constant भी अलग हो जाएगा. तो आप क्या लिखेंगे बच्चा? C is equal to epsilon 0 upon, बोलो क्या लिखेंगे? सबके लिए D सेम होगा, राइट? Yes. So it will be A अलग है, so it will become A1 K1 plus A2 K2 plus dot 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 AN KN है, बराबर है? Yes, sir. सपोज सबका एरिया n नंबर ऑफ कैपेसिटर, सबका मैंने एरिया सेम ले लिया, राइट? इफ A1 is equal to A2, that is equal to AN, right? Yes. Then Yes. obviously वो A upon N हो सकता है क्योंकि टोटल एरिया A है, तो सब सेम है, तो आप उसको A upon N ले सकते हो. Yes. Then C is equal to epsilon 0, K अलग है, A सेम है. Na आएगा ना? Na कैसा होगा बच्चा? अभी सपोज ये आपका टोटल एरिया A है, then A1, A2, A3, A4, A5, तो हर एक का Na होगा कि A upon N होगा, A upon n. Yes, sir. समझा. राइट? सो ये A upon N होगा, बराबर ना बच्चा? Yes. इनटू K1 plus K2 plus dot 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 Kn होगा. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. ये सब समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? No. ठीक है. सपोज हम लोग ने मेटल स्लैब यूज किया फॉर मेटल स्लैब, राइट? या कंडक्टिंग स्लैब भी बोल सकते हो आप, कंडक्टिंग स्लैब. बच्चा मेटल के लिए जो K है ना, K उसका वैल्यू इंफिनिटी होता है. Yes, sir. Infinite. Yes. तो तो K का capacitance. वैल्यू इंफिनिटी है, तो आप डायरेक्टली इधर लगा लो फॉर्मूला बच्चे. सो डोंट थिंक C will be equal to A epsilon 0 upon D minus T होगा, Minus T. Yes. Yes. राइट? Yes, Yes, sir. sir. मतलब इतना पक्का है. आपका डिनोमिनेटर कम हुआ कि बढ़ गया? कम होगा, कम होगा. कम. तो आपका C बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. इसका मतलब C in metals is more than C in dielectrics, right? Yes, Yes. sir. Yes, sir. C in metals is more than C in dielectrics. I hope you're getting the point. Yes. Yes, sir. अब इसको हम लोग क्या करेंगे? D से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मतलब D A epsilon 0 अपॉन D minus T into D. D ऊपर भी नीचे भी, एंड A epsilon 0 अपॉन D C naught है, तो इट इज लाइक D अपॉन D minus T into C naught होगा. बच्चा समझा? Yes, sir. मतलब इधर एक्चुअली क्या हो गया, ये जो मेटल स्लैब यूज करने का वजह से कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड बाय, इससे इंक्रीज D अपॉन D माइनस T से बढ़ गया है. यस और नो? Yes. बच्चा एनी कंफ्यूजन सब तक समझ में आया? Yes, sir. ओके बच्चा लिख पर लो. वो एरिया इक्वल है, वो वाला स्टेप बताओ ना फिर से. ये वाला एरिया इक्वल है बच्चा. सपोज मेरे पास ये दो प्लेट्स, अब ये A1, A2, A3, A4 ऐसा हो गया टोटल, राइट? यस. Yes, sir. उसके बाद हम लोग ने क्या किया बच्चा? हम लोग ने सब एरिया मतलब टोटल एरिया मान के चला कि A है. अब इधर A1 है, देन A2 है, देन A3 है, मतलब ऑब्वियसली ये
सब मिलके नहीं है, मतलब एक फर्स्ट कैपेसिटर है, देन थोड़ा देर के बाद सेकंड कैपेसिटर आएगा, तो सबको मिलके एरिया ए है, यस सर। राइट। यस। तो अभी दो सबको मिलके एरिया ए है और A1 A2 सब इक्वल है, तो आप A1 A2 A3 को A अपॉन एन लिख सकते हो ना, हाँ यस सर, समझा। राइट। यस। यस सर। सर इसमें से एक एरिया का मिल जाएगा ना, एक एरिया का? एक एरिया का मतलब टोटल एरिया से नंबर ऑफ एरिया को डिवाइड किया तो एक एरिया A1 मिल जाएगा या तो A2? हाँ, मतलब सब सेम ही है ना। सर ये सेम हो जाएगा। अच्छा वो वाला भी बता, ऊपर वाला एप्सिलॉन 0 A इन A1 K1, नहीं समझा। कौन सा? ये वाला? सर ऊपर वाला एकदम। ये वाला सर कि ये वाला? सर फॉर पॉइंट डिफरेंट नंबर बताओ, 1 2 3 4 4, सॉरी 3 4 3 3 सर। 3। हाँ हाँ, बोलो। फर्स्ट नहीं समझा फॉर्मूला। बच्चा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 D, इधर A1 A2 A3, ये नहीं समझ में आया, ऐसा बोल रहे हो? ये बोल रहे हो ना बच्चा? ठीक है, ध्यान से सुन। अभी ये प्लेट है बच्चा, ध्यान से सुन। ये एरिया ए है एंड इनका बीच में थिकनेस Yes. डी है, राइट। यस सर। अभी बच्चा देखो, हम लोग ने एक स्लैब को ऐसा प्लेस किया, ऐसा, तो इसका एरिया A1 है, ये K1 है, समझ में आया? यस सर समझा। सर वो नीचे का टर्म किधर गायब हो? क्यों? ये K2 है और ये A2 है, यस राइट। यस और ये A3 है एंड ये K3 है, ऐसा n टाइम्स है, n टाइम्स, ये Kn है और ये n। अभी A1 A2 A3 सब मिलाएंगे तो A मिलेगा ना। यस सर। अभी सब इक्वल बोला तो ऑब्वियसली ये A अपॉन n है, A भी A अपॉन n है, A भी A अपॉन n है, अप टू n टाइम्स आएगा। यस सर। अब ये जो बच्चा हर एक स्लैब है ना, एक दूसरे से सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है, और पैरेलल में तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 3, ऐसा ऐड करते हैं ना, वैसे ऐड किए हैं। समझा सर समझा। सर वो नीचे का टर्म किधर है, डी का टर्म? डी का टर्म है ना बच्चे, इधर ही है ना डी, खाली A अपॉन n, A अपॉन n है तो n लिख दिए इधर। समझा समझा। सर इसमें वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्लोजली स्पेस्ड कंसीडर किया है ना? And of course there is no gap, closely spaced। क्लियर है? यस यस सर। फाइन, इसके केस देखेंगे बच्चा, तो आप तभी आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, वो मैं आपको कर दूंगा इसका बात। अच्छा, किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लो।
बच्चा finished? Yes, sir. Yes, sir. So everybody No, sir. finished it? Okay. No, sir. No. No, Okay. sir. Done, sir. Done. Done, So sir. everyone finished? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Okay, fine then. अच्छा सुनो. So first केस में हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया with area A and distance D. And second केस में हम लोग ने वही कैपेसिटर लिया with area A and distance D. And first केस में हम लोग ने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया और उसको ऐसा प्लेस, मतलब ऊपर K1 है नीचे K2 है. अभी इसका विड्थ D/2 है, इसका भी D/2 बराबर है. सर पैरेलल में ही. एंड ऑफ कोर्स ये तो पैरेलल में है. एंड नेक्स्ट सॉरी ये सीरीज में है, सॉरी ये सीरीज में है और ये पैरेलल में. कैसा मैं समझा देता हूं आपको. Yes, तो ऊपर नीचे नेक्स्ट केस पे इसको K1 है, इसको K2 है. तो अभी क्या हो बच्चा, D सेम है दोनों के लिए. एरिया इसका A/2 है, इसका A/2 है. 2/2. Yes, sir. राइट. Yes. अभी आप क्या करेंगे बच्चा, देखो ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ये और ये. तो ये रेफरेंस है तो ऑब्वियसली ये जो है एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, इसको ऐसा ऊपर लेंगे. तो ऊपर लिया तो ऑब्वियसली दिस विल बिहेव लाइक टू कैपेसिटर्स, 1 and 2. आई होप यू गेटिंग. नहीं समझा सर. नहीं समझा. बच्चा देखो ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, राइट. ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है या लाइन है. ये आपका ऊपर और नीचे का पॉइंट है. तो आप स्प्लिट करना है तो ये राइट. सर एक बार फिर हम नेटवर्क कनेक्शन कर रहे हैं वापस. क्या बोल रहे हो बच्चा. सर फिर से समझा ना, नहीं समझा. हाँ 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 हाँ, डोंट वरी, समझ में आएगा. देखो ये आपका एक पॉइंट है ऊपर, ये नीचे वाला पॉइंट है. तो ये आपका इंटरफेस है दो डाइलेक्ट्रिक में, उसमें
ये इसको रेफरेंस लेके स्प्लिट करना है, तो कैसे स्प्लिट करेंगे बच्चा? इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे ना। सर नहीं समझा सर मतलब वो K1 को ऊपर लेके जाने का K2 को नीचे हाँ, क्योंकि बच्चे ये दो पॉइंट का Yes. बीच में आपको ये जो इंटरफेरेंस लाइन को स्प्लिट करना है, आधा करना है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा Yes. ना, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये दोनों है। यस सर Yes, sir. तो आप लेके जाएंगे तो आपको एक कैपेसिटर ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आएगा, यस यस राइट? Yes, sir. तो मेरे को ये बताओ बच्चा, ये जो C1 का वैल्यू इसका रेफरेंस पे लिखना है, तो कैसा लिखेगा तुम? K1 A एप्सिलॉन 0 अपॉन डिस्टेंस आधा हो चुका है तो D by बाई 2 है, Right. 2 पर चला जाके इट इज 2K1 A एप्सिलॉन 0 अपॉन D हो जाएगा, Yes. यस राइट? Yes. सर C2 क्या होगा बच्चा? K2 A एप्सिलॉन 0 अपॉन D बाई 2 है, D/2 तो फिर से ऊपर जाके इट विल बिकम 2K1 A एप्सिलॉन 0 अपॉन D होगा, सॉरी K2, K2. बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. अभी बच्चे इसका जो कैपेसिटेंस आपको पता है सीरीज में क्या होता है? सीरीज में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है, याद है? Yes. सो अल्टीमेटली इसमें C1 इंटू C2 जो कॉमन है, उसको जो कॉमन नहीं है वो K1 एंड K2 है, राइट? Yes. जो कॉमन है वो 2 है, A है, एप्सिलॉन 0 है, अपॉन D है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, Yes. यस सर Yes, sir. अपॉन अभी बचे C1 प्लस C2 है, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे आप, 2A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, जो कॉमन नहीं है वो K1 प्लस K2 होगा, Yes. राइट? Yes. सो हियर इट इज गोइंग टू बी, बच्चे Cancel. एक्स स्क्वायर है तो x से एक x कैंसिल होके Cancel हो यू जाएगा. हैव 2A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ऊपर आएगा K1 K2, नीचे आएगा K1 प्लस K2, यस सर Yes, That's it. sir. समझ में आया? यस यस सर Yes, sir. हाँ, अभी बच्चा आपको जो फॉर्मूला पता है उसका टर्म्स में बोलो। CS will be equal to, आपको याद है, we will be writing at A epsilon 0 अपॉन D माइनस T था, तो मत, ये तो फुल फुल ऑक्यूपाइड है, तो आप लिखेंगे इसको K1 अपॉन T, सॉरी T1 मतलब D बाई 2, D/2 by K1 plus D/2 by K2 हाँ बच्चा D बाई 2 अपॉन K2 ये लिखते थे ना आप। यस Yes. सर Yes, अब ये sir. D बाई 2 D कॉमन आके 2 ऊपर चला जाएगा, सो डोंट थिंक विल हैव 2A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। अभी नीचे क्या बचेगा बच्चा? देखो K1 प्लस K2 K2 अपॉन K1 K2 एंड ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो सो विल जाएगा। हैव सेम, दैट इज 2A एप्सिलॉन 0 K1 K2 अपॉन, समझ में आया? Yes, sir. समझा. Yes, sir. 13%. राइट? यस ओके बच्चे, इधर अभी बच्चा ये पॉइंट का रेफरेंस पे इसको स्प्लिट किया, दोनों थिंग ऐसा चला जाएगा, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, मतलब वो दोनों पैरेलल में आ जाएगा। पैरेलल में ये आएगा। parallel है. Yes. देखो ऐसा Yes, कुछ sir. होगा बच्चा, राइट? Yes. यस सर Yes, sir. हाँ बच्चे, ये बोलो अभी C1 का वैल्यू बोलो मेरे को, इट इज बोलो K/2 epsilon एप्सिलॉन 0 A बाई 2 K1 Okay. K1 D एप्सिलॉन 0 A बाई 2, ऑफ कोर्स D मिसिंग है, सो इट इज K बाई 2 D एंड K2, ओके? यस सर Yes, sir. हाउ दिस टू आर कनेक्टेड बच्चा? पैरेलल में तो पता है ना C1 प्लस C2 होता है, Plus C2. Yes. तो एप्सिलॉन 0 A अपॉन 2D कॉमन इन ब्रैकेट K1 प्लस K2, K2. राइट? यस सर Yes, sir. अभी दोनों देख बच्चे, एरिया अलग होता तो इधर A1 K1 प्लस A2 K2 होता, यस सर Yes, sir. एरिया सेम है तो एक एरिया कॉमन आ गया, मतलब n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, तो अल्टीमेटली इधर ऐसा ही होगा ना, एप्सिलॉन 0 अपॉन D, राइट? यस सर एंड इधर क्या होगा बच्चा? A1 K1 प्लस A2 K2 ऐसा ही चलते जाएगा, K1. Right? Yes, sir. एंड उसमें क्या बने, तो ये जो 2 का बदले में n आ जाएगा, And दो yes. कैपेसिटर है तो 2, 3 कैपेसिटर है तो 3, Three. n कैपेसिटर है तो n, And यस सर समझा राइट बच्चा? Yes, आई sir. होप यू Yes. पीपल हैव गॉट क्लैरिटी नाउ, राइट? यस yes. Yes, sir. ओके बच्चा लिख लो। नहीं समझा वो। हाँ
पैरेलल में नहीं समझा, पैरेलल में कैसे, सीरीज में भी नहीं समझा सीरीज में क्या भी नहीं समझा है? सर, सीरीज में वो क्यों है वो नहीं समझा सर। सीरीज में क्यों बच्चा, वन आफ्टर द अदर, क्योंकि ये ऊपर गया ये नीचे गया, बट ये ऊपर नीचे नहीं जाता, ये साइड जाता है ये भी साइड जाता है, तो पैरेलल में ना ये दो पॉइंट के बीच में। यस सर, अभी समझा। बच्चा इसको तुम कट करेगा इधर से और ऐसा ज्वाइन करेगा, कट करके ऐसा ज्वाइन ऐसा करेगा, ऐसा, ये कट हो गया इधर, इधर भी कट हो गया, तो ऐसा होगा। तो अल्टीमेटली एक कैपेसिटर इधर एक कैपेसिटर इधर, अल्टीमेटली वो पैरेलल में रहेगा ना, समझा समझा राइट? बच्चे सबको समझ में आया? सर। यस बच्चे देखो Yes, और एक बात, चलो और एक चलो ऐसे, तो ये ए है एंड ये डी है, तो सपोज मैंने आधा एक मीडियम रखा K1, ऊपर मैंने फिर से डिवाइड करके इधर K2 रखा इधर K3 रखा, तो अभी तुम क्या कैसे करेगा बताओ? पहला इन दोनों को पहला स्प्लिट parallel करेगा, में आएगा, पहले बाद में सीरीज में सीरीज आएगा। में करने का फिर पैरेलल। ये नीचे वाला इधर आ गया, देन ऊपर वाला ऐसा आएगा ना बच्चा। पैरेलल में आएगा। Yes, sir. हाँ, Yes. पैरेलल में. अभी Yes, समझ sir. में आया? देखो ये C1 Yes. सॉरी ये Yes, C1 sir. ये C2 ये C3 लाइक दैट। T3. यस सर। यस Yes, Yes. sir. नाउ 101% क्लैरिटी मिला होगा आपको। यस सर समझा। Yes. कर लो बच्चे, कंप्लीट करो इसको।
बच्चा finished? No, sir. No, sir. So I hope it is done. Yes, sir. Yes, sir. So everybody finished? Yes. Yes, sir. Okay. So we'll rub the board. Okay, fine. So next is energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. Yeah, completely charged capacitor. Fine. बच्चा you मान लो बच्चा एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है. So consider a capacitor with the capacitance C, maximum voltage it can accumulate, that is V, and the holding charge holding capacity is Q. समझ में आया? एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, मैक्सिमम वोल्टेज वो V होल्ड कर सकता है, एंड कितना मैक्सिमम चार्ज ले सकता है वो Q है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ बच्चा, अभी C का फॉर्मूला क्या होगा? डोंट यू थिंक C is equal to Q Q by upon V. V, V. राइट? Yes. अभी Yes. लॉजिक समझा रहा हूं बच्चा, ध्यान से देखो. ये कैपेसिटर का दो प्लेट, तो हम लोग ने इसका अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस विद वोल्टेज वी. तो इनिशियली इसका पार्ट बिल्कुल चार्ज नहीं है, तो क्या होगा देखो, सेल का वजह से इधर का इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, Yes. बराबर है? Yes. Yes. Yes, sir. अभी नेक्स्ट जब इलेक्ट्रॉन आएगा, डोंट यू थिंक ये जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज उसको सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा बच्चा? Oppose. Oppose करेगा.
तो ऑब्वियसली ओपोज कर रहे हैं, फिर भी आप जमा कर रहे हो, मतलब सेल कुछ काम किया होगा। एंड Yes. जितना भी काम करेगा सेल, इसका अंदर स्टोर्ड रहेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। Potential लॉजिक energy. समझा? Yes, Yes. sir. Yes, नेक्स्ट sir. इलेक्ट्रॉन को जमा किया तो और वर्क डन। इनफैक्ट जब मैं लास्ट चार्ज को लेके आता हूं, सो आई विल बी डूइंग मोर वर्क, बिकॉज जितना एग्जिस्टिंग चार्ज है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। राइट? Yes. Yes, sir. समझा. Sir. पक्का इधर तक समझ में आया बच्चा? Yes. Yes, sir. Yes. तो अभी मान लो, बच्चा रिपीट करो। Yes. बच्चे ये सेल है, सेल चार्ज करता है ना कैपेसिटर को, तो चार्जिंग कैसा होता है? करंट ऐसा जाना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन उल्टा फ्लो होता है, मतलब ये मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, देता है, तो इलेक्ट्रॉन का ये जो प्लेट का इलेक्ट्रॉन इधर आके जमा होता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया, जमा हो गया, राइट? Yes. तो Yes. इधर से इधर लाने के लिए सेल ने कुछ काम किया होगा ना बच्चा, वो इधर स्टोर्ड रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, Yes. राइट? अभी नेक्स्ट जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा तो सेल ही एनर्जी देता है, बट जितना एनर्जी पहले के लिए दिया है उससे ज्यादा देगा वो, क्योंकि ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉन का वो ओपोज करेगा उसको, Negatively charged. राइट? Yes. मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं चार्ज जमा करते जाता हूँ वैसा वैसा मेरे को ज्यादा एफर्ट भी लगता होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो चार्जेस सिस्टम में है वो ओपोज करता है। Yes. तो इसके लिए मैंने बोला कि when I bring मतलब when cell will bring the last charge, it will be doing the maximum work against the electric field of the charges already present in this plate, right? Yes, sir. Yes, sir. पक्का है? इधर तक समझ Yes. में आया? Sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चा मान लो कैपेसिटर आपका पूरा चार्ज नहीं हुआ है, आधा हुआ है, सो मतलब फॉर ए गिवन इंस्टेंट तो मैंने मान लिया कि उसमें चार्ज स्मॉल q है, पोटेंशियल स्मॉल v है, क्योंकि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो चार्ज कम है तो पोटेंशियल भी कम होना चाहिए। बराबर है बच्चा? Yes, sir. बच्चा इसको मैंने कंप्लीट चार्ज नहीं किया, आधा ही किया है, तो इधर चार्ज प्लस q है तो इधर माइनस q है, तो इधर दोनों का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v होता है, राइट? Yes. Yes. तो बच्चा ये बताओ मेरे को, फॉर ए गिवन इंस्टेंट ये दोनों चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटेंस क्या रहेगा? यही रहेगा कि अलग Small v रहेगा? by q. Small v by q. नहीं, वो तो ओके, बट सी रहेगा कि अलग रहेगा? सेम रहेगा, सेम Same रहेगा। रहेगा. sir. Same रहेगा. एक्सलेंट बच्चा, एक्सलेंट, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ये डिपेंड रहता ही नहीं है। Yes. Yes, sir. ये सी है तो ये भी सी है, राइट? Yes. sir. तो मतलब आपका सी का फॉर्मूला इधर भी Q अपॉन V होगा। इज इट ओके? यस सर। Yes. Yes, sir. डीवी रहेगा ना, हाँ, डीक्यू बाय डीवी। DQ by DB। यस सर, डेरिवेटिव के टर्म। क्यों बच्चे? फॉर ए गिवन इंस्टेंट इसमें चार्ज मैंने मान लिया कि Q है, तो Q आएगा ना, DQ किधर आएगा? यस सर, समझा। बराबर है? यस सर, यस। पक्का ना? कुछ कंफ्यूजन नहीं है? अभी सपोज मैंने DQ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या DQ अमाउंट ऑफ चार्ज को वापस इधर आके जमा कर रहा हूं, इसको ऊपर ऑलरेडी चार्ज Q है, तो मैं एक्युमुलेट कर रहा हूं चार्ज DQ, तो डोंट यू थिंक आई हैव टू डू सम वर्क, Work. Yes, sir. Yes. राइट? Yes. Yes. Fine. The work done, of course, that will be small, to deposit a charge of DQ. अभी समझ में आ रहा है आपको? Yes, The work sir. done to deposit a charge of DQ, right, Yes. on the plates is given by सर वो क्यू बाई वी मतलब क्या रहेगा? Q by V। बच्चा रेशियो है, कैपेसिटेंस है। यस। Sir, बच्चा मैंने मतलब पूरा Charge चार्ज किया मैंने इसको, तो ये कैपिटल Q, राइट, ये माइनस कैपिटल Q, इनका बीच में वोल्टेज कैपिटल V, तो C इज इक्वल टू Q Yes. अपॉन V है।
तो अभी बात हो रहा है आधा चार्जिंग हुआ है, फॉर ए गिवन इंस्टेंट का बात कर रहा हूं। यस सर, समझा समझा। तो चार्ज स्मॉल क्यू है तो पोटेंशियल अलग होगा, वी से अलग, तो मैंने स्मॉल वी लिया, बट कैपेसिटेंस इधर भी सी है इधर भी सी है, वो तो चेंज ही नहीं होता है ना, राइट? वो सेम है। यस सर। फाइन, Yes, बताओ sir. बच्चा। अभी dw विल बी द स्मॉल वर्क डन विच विल बी इक्वल टू, अभी जो पोटेंशियल है वो v है, चार्ज मूव कर रहे हो आप dq है, DQ। इसका रेफरेंस ये है पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, देयरफॉर वर्क डन इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल उसका लेना है जिधर आप चार्ज को लेके जा रहे हो, तो उधर पोटेंशियल तो v है। चार्ज उसका लेना है जिसको आप लेके जा रहे हो, तो किसको लेके जा रहे हो, dq को, DQ राइट? यस सर। Yes, sir. इतना समझा बच्चा? Yes, sir. यस। हाँ बच्चा, अभी आप v का बदले में क्या लिख सकते हो बच्चा? फ्रॉम हियर, डोंट यू थिंक by v C। इधर c इधर, वी कैन राइट v is equal to q upon c, yes Q or no? upon C. यस सर। Yes, sir. So dw will be equal to, it is q upon c dq, right? यस। Yes. बच्चे ये क्या देता है? It gives work done to deposit a charge of dq only, बट आपको तो पूरा चार्ज करना है ना बच्चा? इंटीग्रेशन। Integration. हाँ, therefore the total work done to charge the capacitor, right? यस। To charge the capacitor is given by, and obviously आपको टोटल चार्ज किधर 0 to q तक है, तो w will be equal to integration of dw and you're going to charge it from 0 to q, yes or no? यस सर। Yes, sir. अभी Yes. dw को बदले में ये लिखेंगे आप, so w will be equal to integration from 0 to q by c dq, right? तो 1 by c तो बाहर लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो बचता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to q dq। ये तो आपको पता है ना, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 है, तो ये q स्क्वायर बाई 2 होगा, यस। राइट? यस सर। Yes, sir. ये q स्क्वायर अपॉन 2 होगा, लिमिट रहेगा 0 to q, तो अपर लिमिट ही डाला, लोअर लिमिट 0 है, तो अल्टीमेटली ये बनेगा 1 by c q स्क्वायर, राइट, अपॉन 2 माइनस 0, Yes. राइट? Yes. सो फाइनली हम लोग को मिलेगा वर्क डन इज Q square 1 by by 2 q स्क्वायर अपॉन c है। इतना समझ में आया? यस सर। Yes, Yes. sir. सो इतना तो पक्का है यार, द टोटल वर्क डन is stored in the form of electrostatic potential energy, obviously potential energy मतलब u लेंगे आप, so u is equal to w, that is equal to half q square upon c। इतना समझा बच्चा? Yes. Yes. तो अभी ठीक से देखो, दिस इज हाफ q स्क्वायर अपॉन c। बच्चा मैंने q को cv लिखा, cv, तो डोंट यू थिंक इट इज हाफ cv स्क्वायर होगा? यस। यस। Yes. हाँ, हाफ cv स्क्वायर में ये जो v है इसको मैंने q अपॉन c लिखा। कौन सी भी आएगा? क्या बोल रहे हो बच्चा? नहीं सर, समझा समझा। चलो c को मैंने q अपॉन v लिखा, डोंट यू थिंक एक v कैंसिल होके हाफ q v मिलेगा? यस। यस सर। तो Yes. ये आपका 3 फॉर्म है बच्चे एनर्जी का, एक चार्ज कैपेसिटेंस, नेक्स्ट चार्ज सॉरी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, नेक्स्ट चार्ज एंड पोटेंशियल। इज इट ओके? यस। Yes, Yeah. sir. यस सर। फाइन देन, फाइन, कंप्लीट करो बच्चे।
सर अगर टू चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया क्या बोल रहे हो? तो दो चार्ज स्फीयर को टू चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दो चार्ज मतलब बच्चा दो बैटरी बोल रहे हो? नो सर, टू चार्ज कैपेसिटर, यहाँ पर एक चार्ज कैपेसिटर लगा है। एक चार्ज कैपेसिटर बच्चा, चार्ज क्यू मतलब एक प्लेट में प्लस क्यू दूसरे में माइनस क्यू। यस टू चार्ज मतलब क्या बोल रहे हो बताओ? सर, दो कैपेसिटर्स लगाए थे हाँ मतलब सीरीज में या पैरेलल में, ऐसा बोल रहे हो? इस तरह सीरीज में। सीरीज में बोल रहे हो? यस यस मतलब वो इट विल बिहेव लाइक ए बच्चा इफेक्टिव कैपेसिटर जब सीरीज में हम लोग करते हैं वैसा होगा, राइट? तो पहले इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, देन देखना पड़ेगा कि डिवाइड हो जाएगा, बेसिकली वोल्टेज डिवाइड होके, राइट? यस देन उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस आता है उसके हिसाब से वो चार्जिंग होएगा। मतलब अभी सीरीज में तो दोनों में चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। यस सर। सर हम्म। लास्ट लेक्चर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिखाया था ना, हाँ उसके अंदर एक डाउट है। बोलना। द फील्ड लाइंस बेंड आउटवर्ड एट द एडजेस। सर हाँ मतलब ऐसे दिया है कि जो प्लेट है ना, अगर उस वो इनफिनिटेसिमल ने लिया, अगर हाँ उसका लिमिट लिया तो जो एडजेस रहता है ना, उधर हाँ फ्रिडजिंग ऑफ फील्ड होता है, उसका मतलब हाँ हाँ बराबर है बच्चा। उसका मतलब ये है, सपोज दो प्लेट का बीच में हम लोग ने डिस्टेंस ज्यादा लिया तो लाइंस ऑफ फोर्स डीविएट होता है, राइट? अभी डिस्टेंस एकदम कम रखा एकदम, तो सब स्ट्रेट रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस सर, समझा। समझा? तो हम लोग को अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए द टू प्लेट्स आर प्लेस्ड वेरी 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 क्लोज, एज इफ एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज सेम। यस सर, समझा। अच्छा हो गया लिख के? हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, आपने बोला था कि आप स्पेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए भी फॉर्मूला देंगे। हाँ हाँ वो तो दे देता हूँ, अभी अभी दे दूंगा। ये हो गया लिख के? यस सर। यस यस फाइन। सो बच्चा रब कर रहा हूँ। अच्छा देखो, अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो ऑब्वियसली दो प्लेट्स होगा विद एरिया ए, डिस्टेंस होगा डी, एंड ये अर्थिंग पे जाएगा तो कैपेसिटेंस उसका या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो ऑब्वियसली आप के यूज कर सकते हो। सो कैपेसिटेंस आता है एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी, बराबर है? यस सर। यस सर। Yes. एंड ऑफ कोर्स इधर पॉजिटिव पे कनेक्ट किया तो ये प्लेट पे प्लस आएगा, इधर देन ये माइनस आएगा, राइट? तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, एंड एक पॉजिटिव चार्जिंग तो आती है। नेक्स्ट इज सपोज स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सो इधर क्या होगा बच्चा, दो को यू नो सेंट्रल मतलब कोसेंट्रिक स्पीयर्स लेंगे आप, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, राइट? ये सेंटर ओ है तो मान लो इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, राइट? Yes. यस। बच्चा हम चार्जिंग देंगे अंदर वाला प्लेट पॉजिटिव में बी प्लस क्यू, ओके? देन इंडक्शन की वजह से अंदर का मतलब सेकंड वाला प्लेट का स्फीयर का अंदर का जो सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज माइनस क्यू, राइट? यस
Yes. ऊपर वाला के ऊपर क्या आएगा बच्चा? पॉजिटिव आएगा जो अर्थिंग में चला जाएगा, अर्थिंग में आएगा। राइट? Yes, sir. Yes. हाँ, अभी सपोज इनका बीच में मीडियम है तो आप के ले सकते हो, नो हार्म. सो द फॉर्मूला फॉर सी इट्स गिवन बाय 4 pi epsilon 0 of course k in bracket obviously a और b में b ज्यादा है, so this ab upon b minus a, this formula you have to remember. ab upon b minus a, क्योंकि obviously b ज्यादा है तो b minus a, this will be the formula, right? Yes. Yes, sir. एंड थर्ड के लिए सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, तो दोनों कोएक्सियल होगा, दोनों का एक्सिस सेम होगा, जैसा उधर सेंटर सेम था. तो फर्स्ट सिलेंडर जो है उसका रेडियस ए ले लो, देन और एक सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है, इसका रेडियस बी है, तो चार्ज तो इसको देंगे अंदर वाले को, तो इंडक्शन की वजह से इधर माइनस आएगा एंड आउटर सरफेस जो है उधर प्लस आके उसको अर्थिंग में देंगे, राइट? यस Yes. बराबर ना? Yes, sir. यस सर क्लियरली समझ में आ रहा है? बराबर है. अभी बच्चा इसका जो Yes, sir. मान लो इसका जो लेंथ है वो सपोज एल है, राइट? Yes. So C is given by a formula that is 2 pi epsilon 0. बच्चा मीडियम है तो K लेना पड़ेगा if there is a medium, right? नहीं तो नहीं लेना पड़ेगा, into L upon it is going to be log to the base E, that is exponential, that is B upon A. ये इसका कैपेसिटेंस. लॉग क्यों आया? क्या बोल रहे हो लॉग नहीं समझा सर, लॉग क्यों आया? बच्चे? ये अभी प्रूव करने वाला तो नहीं है ना, आपको याद रखना पड़ेगा. यस सर, यस। समझ Yes. रहे हो ना? लॉग आपको पसंद नहीं आया या समझा नहीं तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि देयर इज अ डेरिवेशन फॉर दिस व्हिच वी विल नॉट डू इट, बट देयर विल बी अ लॉग टर्म हियर. इज इट Yes. ओके? Yes, sir. एंड फोर्थ वाला ना बच्चे देखो, याद करो, सपोज हमारा पास ऐसा प्लेट्स है, ठीक है? कितना प्लेट है बच्चा? 4 4. तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ये प्लेट्स को कनेक्ट कर लेंगे, मतलब ऐसे. Yes, sir. मतलब पोला पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ऐसा. तो आई थिंक आई विल गो विद दिस. ठीक से देखो, इधर मैंने सेल कनेक्ट कर दिए, राइट? तो हमारा प्लेट कितना है गिनो बच्चा? 1 2 3 4 है, राइट? Yes. 4 प्लेट्स है, राइट? Yes. यस सर तो देखो बच्चा, इसको मैंने पॉजिटिव पे कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव, तो इधर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव आएगा. ऊपर किधर आएगा? नेगेटिव आएगा. Negative. तो ये एक कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा, बराबर है? यस Yes. देन इधर पॉजिटिव आएगा, इधर क्या आएगा बच्चा? नेगेटिव आएगा. यस तो ये दूसरा कैपेसिटर है. सो वैसे इधर नेगेटिव आएगा एंड इधर पॉजिटिव आएगा, ये तीसरा कैपेसिटर. इसका मतलब 4 प्लेट में 3 कैपेसिटर बन रहा यस सर Yes. है, राइट? Yes, sir. So for n number of plates, n minus 1 -1. हाँ बच्चा, very good. So number of capacitor है, capacitance is n minus 1 into capacitance of single capacitor. I hope you getting. आप Yes, sir. चाहिए तो इसका एरिया a लिया मैंने, डिस्टेंस इधर सबका d, मतलब इधर d इधर d इधर d, a, तो ये होगा epsilon 0 a upon d. Yes or no? यस सर Yes, sir. So capacitance effective will be equal to n minus 1
capacitance, that is CA. C is the capacitance of one. Is it okay? Yes. Yes, sir. बच्चा any confusion? सर No, इधर बच्चे sir. ये आपको कोई प्रूव करने नहीं बोलेगा बच्चा, आपका 12th में पूछेगा भी नहीं, बट MCQs में फॉर्मूला का तो डेफिनेटली जरूरत है. Is it okay? यस सर Yes, sir. Fine, बच्चे कंप्लीट कर लो. So I hope up to this much it is very clear, right? बच्चा Yes, इधर sir. तक सब क्लियर है, बराबर है? Yes, sir. फाइन, तो इसको लिखो, देन वी विल स्टॉप. खाली 2 टॉपिक बाकी है बच्चा, एक डिस्प्लेसमेंट करंट है और एक वैन डे ग्राफ जनरेटर है, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे. देन हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम, राइट? सर Yes, sir. सर बोलो बच्चा बोलो. 4th पॉइंट रिपोर्ट करो ना, नेटवर्क इशू. कौन सा बच्चा? 4th वाला? यस यस बच्चा 4th वाले में देखो, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, ये 3, ये 4. तो अभी क्या किया मैंने, फर्स्ट और थर्ड को माइनस पे कनेक्ट किया सेल का, एंड सेकंड और थर्ड को मैंने कनेक्ट किया प्लस पे. तो क्या होगा, चार्जिंग होगा, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस. तो एक कैपेसिटर बनेगा, एक कैपेसिटर बनेगा, एक कैपेसिटर बनेगा, मतलब 3 कैपेसिटर, मतलब 4 प्लेट यूज करके आपको 3 कैपेसिटर मिल गया. तो ऑब्वियस है ना, आपने Earthing n नहीं नंबर करना ऑफ था. प्लेट्स यूज किया तो n-1 बनेगा, राइट? सर अर्थिंग नहीं करने का इसमें. अच्छा, अर्थिंग तो अंडरस्टूड है ना, वो तो है ना इंटरनली. यस यस हाँ समझा सर. हाँ, बच्चे सबने लिख लिया? नो यस सर. सर. No, sir.